We were studying the topic of vibration absorbers, and we had studied that if there is a primary system with mass m1 and spring constant k1, on which a forcing function f naught sine omega t is being applied, then we expect it to vibrate with an amplitude, let us say y1. And in case the amplitude y1 is very large, so that we want to eliminate the large amplitude of vibration, we want the mass m1 to not vibrate at all. Then we bring an auxiliary system, which is once again a new spring mass system K2M2. And we specifically design the values of this K2 and M2 in such a way. That means we select the values of K2 and M2, select appropriately. And this appropriate selection of K2 and M2 is called as design of absorber. So in your question paper also, you can expect questions like design a vibration absorber so that this system does not vibrate. So questions like this will come. So if a question involves the phrase design an absorber, you should understand that it inadvertently means the appropriate selection of the values of K2 and M2. Now, what you have to do is you have to make under root of K2 by M2, which we now call as omega 2, that is the natural frequency of the auxiliary system taken alone when it is not connected to the system. When it is standalone, then it will have a single natural frequency because at this time it is a single degree of freedom system. And this natural frequency which comes out as K2 by M2, under root of K2 by M2, we call as omega 2, or rather the natural frequency of the auxiliary or secondary system as a standalone system. Now, in order to successfully absorb the vibrations of the primary system, the condition that we derived in the previous class was that this omega 2 should be equal to the omega value of the forcing function being applied on the primary. So this is the condition for vibration absorption. And now let us proceed with our further derivation that is being provided here. Now we had derived this expression capital X1 is equal to this thing, and from this expression only we derived the condition that omega should be equal to under root k2 by m2. How? We said that vibration absorption would be called as successful when this x1 becomes equal to 0. And for this x1 to be equal to 0, the numerator of this expression should be 0. And that is how we arrived at this particular condition. Now let us come back to this expression and let us see that there is some further treatment possible. Okay. Now I have eliminated the small steps that are involved in eventually coming up with this expression. And it would be a very good mathematical exercise for you guys to try and find out whether this comes out to be the same expression or not. And what you have to do is
these are the steps. Divide the expression of x1. Expression of x1 means the whole equation. You have to divide the whole equation by the product k1 k2. Okay, so what you have to do is you divide by k1 k2 on the LHS, and you divide by k1 k2 on the RHS also. Okay, and now a lot of transformations occur in converting this equation into this equation. In a way, you can say that this equation, that is equation number 8, is exactly the same as equation number 7, because k1 and k2 was taken as the denominator on both the sides. So the overall equation will not be affected. And what are the further treatments that you have to do? Wherever you find the ratio of k1 by m1, you take it as omega 1 square. That means we are asking you to put under root of k1 by m1 wherever it occurs equal to omega 1, and under root of k2 by m2 equal to omega 2. As we understood, this omega 1 is the stand-alone natural frequency of the primary system, and this omega 2 is the stand-alone natural frequency of the secondary system. And this is very important. We are introducing a new parameter called as the mass ratio, and we are going to represent it with mu. So mu is the ratio of the secondary mass that you are bringing from outside to put in your system, and m1 is the mass of your original system which was vibrating at a very high frequency. So m2 by m1, mass of secondary to that of primary, we are now going to define as the mass ratio, and we are going to depict it by mu. So these are the steps that you have to undertake in order to transform your equation number 7 into equation number 8. First of all, divide both the sides or the entire equation or the expression of x1 by k1 k2, and wherever you find the ratio of k1 by m1, you convert it into omega 1 square, and wherever you find the ratio of k2 by m2, you convert it into omega 2 square, and wherever possible you make use of the ratio m2 by m1 and replace it by the new parameter mu, and on successful transformation you get this equation. Also, this need not be said that as soon as you see an expression of f naught by k1, you can immediately replace it with xst, that is the zero frequency deflection. Okay, so making all these changes, which, let me tell you, if you even try it out on a piece of paper, it will most probably take you not less than 10 minutes. It's a pretty complicated conversion, so that is why I avoided, because at the end of this conversion whatever remains has to be eventually remembered by you. Okay, ये याद रखना है आपको, ये मेरा सजेशन है आपके लिए. तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दिखाया भी इसीलिए नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू कैरी आउट ऑल द कंप्यूटेशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड विद ऑल दीज स्टेप्स टू इवेंचुअली अराइव एट दिस, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में सिर्फ इस इक्वेशन को प्रॉपरली डिराइव करने में अपने 10 से 15 मिनट नहीं गवा सकते, क्योंकि एग्जाम का एक एक मिनट प्रेशियस होता है. तो एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई बताओ ये कैसे आया, हमें तो एक एक स्टेप देखना है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, यू जस्ट हैव टू राइट लाइक दिस ओनली, कि पूरे एक्सप्रेशन को k1 k2 से डिवाइड किया, जहां पर भी अंडर रूट k1 बाय m1 आया उसको ओमेगा 1 लिखा, इसको ओमेगा 2 लिखा, m2 बाय m1 को म्यू लिखा, और f नॉट बाय k1 को xst लिखा और रीअरेंज किया. दैट्स इट, यू पुट इट लाइक दिस. ठीक है, और इसमें देखना, इसमें k का कोई भी टर्म नहीं है. यू हैव एलिमिनेटेड द स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑल टुगेदर. इसमें मासेस की कोई टर्म्स नहीं है, म्यू आ गया मासेस की जगह पे, एंड एवरीवेयर द होल एक्सप्रेशन is a function of omega
ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, बस ये तीन फ्रीक्वेंसीज ही दिख रही है। ओमेगा क्या है? प्राइमरी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 क्या है? प्राइमरी को अकेला एक सिस्टम मानूं, स्टैंड अलोन, तो उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 2 क्या है? सेकेंडरी सिस्टम को स्टैंड अलोन सिस्टम मानूं तो उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, so x1 upon xst is eventually a function of these three frequencies and mu, which is the mass ratio. Okay, so once again I am reminding you, आप इसको ट्राई करके जरूर देखें, एक अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस होगा कि भाई आपको कितनी गणित मैनिपुलेट करनी आती है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो थोड़ा सा मैथमेटिकल चैलेंज का टेस्ट रखते हैं। मैं तो जरूर कहूंगा कि आप एक बार इसको ट्राई करके देखें। गलती भी होगी, एक आध जगह पे अटकोगे भी, एंड इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम you are trying it out and you get stuck and don't get to this expression, you are most welcome to give me a call. मैं आपको वापस से एक उसी टाइम हाथों हाथ अपन एक पर्सनल गूगल मीट सेशन स्टार्ट करके मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये एक्सप्रेशन कैसे आता है। बट फॉर द लार्जर पर्पस, वंस अगेन आई एम सजेस्टिंग कि आप अपनी संतुष्टि के लिए इसको एक बार डिराइव करके देखें, लेकिन इसका जो डेरिवेशन वाला जो पार्ट है इसको आप ओमिट करके डायरेक्टली भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे अब आगे ये बात आती है, चलो x1 अपॉन एक्स एस टी इज दिस। ठीक है, नाउ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स आर जनरली यूज्ड व्हेन प्राइमरी सिस्टम इज नियर और एट रेजोनेंस। यानी कि आप एक एब्जॉर्बर को लेकर के कब आओगे सिस्टम में लगाने के लिए? आपने कहा कि भाई ये मेरा सिस्टम जो है इतना सा था, दिस वाज माय सिस्टम। ठीक है, सेकेंडरी वाले पार्ट को तो बाद में मैंने लगाया है। क्यों लगाया? बिकॉज आई वॉज अनहैप्पी विथ द लार्ज एम्पलीट्यूड हियर। और कोई सिस्टम अगर वाइब्रेट कर रहा है और वो बहुत ही लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपका जो ओमेगा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो अभी फिलहाल अप्रोक्सीमेटली आपके ओरिजिनल सिस्टम की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नजदीक चल रहा है। इसीलिए ये उछल कूद ज्यादा हो रही है। बिकॉज दिस कंडीशन is also commonly called as the condition of resonance. रेजोनेंस की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, इसको एक बार रिविजिट कीजिए अपने बिल्कुल फर्स्ट लेसन के अंदर जाकर के। द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शंस becomes equal to the natural frequency of the system. तो अभी आपने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगाया नहीं है सिस्टम में, लेकिन आपकी जो एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो आपके ओरिजिनल सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के काफी नजदीक आ गई है। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एंड दैट इज व्हाई दिस x1 इज मच 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 लार्जर देन 0। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, एंड योर सिस्टम इज अबाउट टू ब्रेक डाउन। अगर ये कंडीशन ज्यादा देर तक चलती रही तो आपका सिस्टम या तो खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर वो जहां इंस्टॉल्ड है उस बिल्डिंग को गिरा देगा। सो व्हाट यू वांट टू डू इज you bring an absorber appropriately designed so that you select the values of K2 and M2 in such a way so that under root of K2 by M2 becomes equal to omega। तो अब अपन यहां पर तर्क ये कर रहे हैं, मैं वाइब्रेशन एब्जॉर्बर तो लगाने की बात करूंगा ही तब जब ये x1 बहुत लार्ज हो। x1 बहुत लार्ज कब होगा? जब ओमेगा ऑलरेडी ओमेगा 1 के काफी बराबर आ चुका होगा, उसी कंडीशन में x1 लार्ज होगा। और अब जब मैं ये एब्जॉर्बर लगा रहा हूं
तो उसकी कंडीशन ये है कि मेरा ओमेगा जो है वो ओमेगा 2 के बराबर होना चाहिए। तो अब कुल मिलाकर के इन सारी बातों को अगर अब एक साथ बटोर के एक साथ देखा जाए, तो आप ये कह रहे हो एब्जॉर्बर मैं तब लगाता हूं जब मेरा ओमेगा अप्रोक्सीमेटली ओमेगा 1 के बराबर हो। एब्जॉर्बर लगने के बाद मेरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा के बराबर हो। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो गई, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। एंड बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि रेजोनेंस की कंडीशन पे अगर आपको सेकेंडरी सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको ओमेगा से कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो प्राइमरी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर का ही सेकेंडरी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी रख दो। तो आपकी प्राइमरी सिस्टम की जो रेजोनेंस की कंडीशन है, उस कंडीशन पे आपकी सेकेंडरी सिस्टम इसका एम्पलीट्यूड जीरो कर देगा। तो अब ये जो कंडीशन आ रही थी x1 ग्रेटर देन जीरो, वेरी मच लार्जर देन जीरो, ये कंडीशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। एंड सच एब्जॉर्बर्स इन विच द natural frequency of the secondary system is knowingly designed equal to the natural frequency of the primary system is called as a tuned absorber। इस चीज को ट्यून्ड एब्जॉर्बर कहते हैं। ये सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं, जो बातें अभी मैंने आपको वर्बली समझाई थी। दीज आर रिटन इन अ वेरी कंसाइज फैशन विच यू कैन ऑल्सो यूज द सेम लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर आंसर इन आरटीयू पेपर। और ये ट्यून्ड एब्जॉर्बर का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन। पीपल ऑलवेज आस्क व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ट्यून्ड एब्जॉर्बर। तो आपको सिर्फ इतना सा जवाब देना है कि भाई हम एब्जॉर्बर लगाने की बात तब करते हैं जब प्राइमरी खुद सिस्टम खुद रेजोनेंस की कंडीशन पर हो, यानी कि क्या कंडीशन है, ओमेगा इज नियरली इक्वल टू ओमेगा 1। एब्जॉर्बर को एब्जॉर्ब करने की कंडीशन ये होती है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2। तो दैट मीन्स ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है। और इसके बाद आप लिख देना कि सच एब्जॉर्बर्स in which the natural frequency of the secondary system is knowingly kept equal to the natural frequency of the primary system are called as tuned absorbers। यानी कि आपने प्राइमरी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यूनिंग बिठा करके सेकेंडरी सिस्टम को डिजाइन किया है। इसी को ट्यूनिंग कहते हैं। ओमेगा 1 के बराबर अपनी सेकेंडरी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को रखने को ट्यूनिंग कहते हैं। तो दिस इज, सो नाउ योर एब्जॉर्बर विल बी कॉल्ड एज अ ट्यून्ड एब्जॉर्बर। ठीक है। एंड फॉर ऑल पर्पसेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कभी भी अपन ये कहेंगे कि एक एब्जॉर्बर डिजाइन करके लाओ, तो आप ये मान लेना वी आर डिजाइनिंग अ ट्यून्ड एब्जॉर्बर। ट्यून्ड एब्जॉर्बर ही बनते हैं, क्योंकि और किसी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्बर बनाने का कोई तर्क ही नहीं बनता। भाई जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका प्राइमरी सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखा रहा हो, उसी फ्रीक्वेंसी पे ही तो एब्जॉर्बर बनाना चाहिए अपन को। उसके अलावा किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करके कर भी क्या लोगे। So generally, whenever you are putting a dynamic vibration absorber, you think in your mind कि tuned ही लगाना है। जो एब्जॉर्बर ट्यून्ड ना हो ओमेगा 1 के साथ में, उसको लगाने का फायदा क्या? क्योंकि आपने एब्जॉर्बर तो लगा दिया, लेकिन जब रेजोनेंस की कंडीशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 आएगी, और अगर आपका ओमेगा 2 ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, तो एब्जॉर्बर काम ही नहीं करेगा। एब्जॉर्बर को काम करने की कंडीशन ही यही है कि ओमेगा 2 ओमेगा के बराबर हो। ठीक है। So from now onwards, for all general purposes, when you speak about designing an absorber, and if the question paper setter has not specifically told you to design a tuned absorber, you still think कि मुझे तो tuned absorber ही बनाना है। That's it. Now, for a tuned absorber, we will be using the condition of tuning, that is omega 1 equal to omega 2। अब ये एक्सप्रेशन अपन ने यहाँ पर जो बना रखा है, इस एक्सप्रेशन में जहां पर भी आपको ओमेगा 1 दिख रही है, उसको ओमेगा 2 से रिप्लेस कर दो, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग अ ट्यून्ड एब्जॉर्बर। तो यहां और यहां मुझे ओमेगा 1 का स्क्वायर दिख रहा है,
इन दोनों को मैं ओमेगा 2 के स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा, तो मेरा जो एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 8 है, दैट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्वेशन नंबर 9 लाइक दिस। अब देखो इसमें सिर्फ आपका x1 अपॉन एक्स एस टी जो है, दैट इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा अपॉन ओमेगा 2। ये सिर्फ ओमेगा बाई ओमेगा 2 का फंक्शन रहेगा आगे फॉर अ ट्यून्ड एब्जॉर्बर, ठीक है। एंड इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। आपको पता है x1 अपॉन एक्स एस टी क्या होता है, दिस इज मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ योर प्राइमरी सिस्टम डिवाइडेड बाय एक्स एस टी, क्या चीज है, एफ नॉट अपॉन के वन, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन फॉर अ फोर्स्ड वाइब्रेशन वाज ऑलवेज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन फैक्टर। इसको तो अपन बहुत पहले से ही मैग्निफिकेशन फैक्टर नाम से जानते आए हैं। और अगर आप कभी भी मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो का कोई कर्व बनाते हैं, तो उसका नाम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है। तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन अपन को मिला एक ट्यून्ड एब्जॉर्बर को लगाने के बाद, ठीक है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ड्रॉ करूं इस इक्वेशन को लेते हुए, एक्स एक्सिस पे ओमेगा बाई ओमेगा 2 ले लूं और वाई एक्सिस पे x1 अपॉन एक्स एस टी ले लूं, आई गेट अ कर्व लाइक दिस। एंड नाउ वंस अगेन यू मस्ट रिमेंबर द शेप ऑफ दिस कर्व। ये कर्व आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें एक म्यू भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट यू कैन से इज दैट इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स of your tuned absorber, the magnification factor is a function of actually two things. It is a function of omega by omega 2, as is evidently seen in the expression, and it is also a function of mu. Mu being the mass ratio, mu is equal to m2 by m1. ठीक है, इन दोनों का फंक्शन है। सो वेन एवर आई ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स, मैं ये कहूंगा पहला तो साहब मैंने ओमेगा 2 को ओमेगा 1 रखा, यानी कि ये ट्यून्ड एब्जॉर्बर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है। दूसरा, ये बताओ कि म्यू कितना है। तो अभी फिलहाल मैं अगर म्यू की कोई वैल्यू लेता हूं 0.2, तो मेरा कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये देखिए, यू सी एट दिस पॉइंट, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x1। अगर मैं ग्राफ पे इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो x1 की वैल्यू कितनी है? इट इज जीरो। एंड दिस इज द डिजाइन पॉइंट ऑफ योर एब्जॉर्बर, यानी कि इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड जीरो रखने के लिए ही आपने इसको डिजाइन किया था। तो आप ये देख रहे हैं ओमेगा बाई ओमेगा 2, और इसमें ओमेगा 2 क्या है, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ k2 बाई m2। अब एब्जॉर्बर तो डिजाइन हो चुकी, यानी कि k2 की वैल्यू फिक्स हो गई, एक स्प्रिंग बन गया, m2 की वैल्यू फिक्स हो गई और आपने उसको ऑलरेडी लगा दिया। तो m2 की वैल्यू फिक्स हो गई, तो आप ये भी कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू भी फिक्स हो गई अभी मेरे लिए, क्योंकि म्यू क्या है, m2 बाई m1, और m2 क्या है, आपने अभी अभी कहा कि फिक्स कर दी मैंने, और m1 क्या है, मशीन का मास, यानी कि ओरिजिनल सिस्टम का मास। अब वो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो आपने बाजार से खरीद के लाके इंस्टॉल कर दिया। सो एज सुन एज यू से कि मेरा ओमेगा 2 डिसाइड हो गया है, तो साथ साथ में आपका म्यू भी डिसाइड हो गया, आपका ओमेगा 2 भी डिसाइड हो गया। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए अब आपके सिस्टम के। अब इस कर्व में आप राइट हैंड साइड को प्रोसीड करोगे कैसे?
by increasing ओमेगा। रेशियो है ओमेगा बाई ओमेगा टू का, और मैं कह रहा हूं ओमेगा टू तो फिक्स हो गया अभी एब्जॉर्बर लगाने के बाद। अब एक ही चीज चेंज हो सकती है, ओमेगा। अब ये ओमेगा जीरो से लेकर के, जीरो पे मतलब अभी मशीन बंद है, फिर आपने मशीन स्टार्ट की और धीरे धीरे मशीन की स्पीड को बढ़ा रहे हो। ये देखो आप प्रोसीड कर रहे हो ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड नाउ एज सुन एज यू कम टू दिस पॉइंट, you see that your amplitude of the entire system shoots to infinity। यहां पर रेजोनेंस हो गई। तो अब उससे बचने के लिए आपने क्या किया, बोला कि अरे भाई जल्दी से स्पीड और बढ़ाओ। तो जैसे ही आपका वायलेंस बढ़ा सिस्टम के अंदर, आपने स्पीड को कम नहीं किया, आपने स्पीड को और बढ़ा दिया। एंड सरप्राइजिंगली एज सुन एज यू इंक्रीज्ड द स्पीड एंड यू अप्रोच्ड दिस डिजाइन वैल्यू, एकदम से प्राइमरी सिस्टम चुप हो गई। तो इस पॉइंट पे व्हेन योर, या ये पॉइंट यहां पर वन क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ओमेगा बाई ओमेगा टू का वन होने का क्या मतलब है, आपका ओमेगा इस पॉइंट पे ओमेगा टू के बराबर हो गया। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन। यानी कि जैसे ही ओमेगा ओमेगा टू के बराबर हुआ, आपका एम्पलीट्यूड एक्स वन का जीरो हो गया। अब आप फिर स्पीड बढ़ाते चल रहे हो, फिर स्पीड बढ़ाई तो देखा कि अब एम्पलीट्यूड फिर बढ़ने लग गया। ये देखो एम्पलीट्यूड बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे ही आप इस तीसरे पॉइंट पे आए, अगेन योर सिस्टम बिकेम वेरी वेरी वायलेंट एंड अगेन द एम्पलीट्यूड वेंट टू इंफिनिटी। देखा आपने। तो अब आपने एक फिनोमिनन देखा कि भाई मैंने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगा दिया है सिस्टम में, ये उसकी इक्वेशन है। इक्वेशन किसकी है, मेरे प्राइमरी सिस्टम के एम्पलीट्यूड को चेक करने की इक्वेशन है ये। तो प्राइमरी सिस्टम के एम्पलीट्यूड का मैंने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बनाया, तो मैंने देखा कि भाई मेरा इस पॉइंट पे तो वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है जैसा मैं चाहता था, लेकिन उसके आजू बाजू दो ऐसी स्पीड्स हैं जिसपे फिर से रेजोनेंस हो रही है। अब ये कौन सी स्पीड है। नाउ प्लीज नोट कि जिस पॉइंट पर रेजोनेंस ऑकर हो रहा है, उस पॉइंट को मैंने कैसे डिनोट किया है। This is omega n1 by omega 2 and this is omega n2 by omega 2। And please remember what I told you yesterday। अपने पास कौन कौन सी अभी पांच फ्रीक्वेंसीज के साथ काम कर रहे हैं। ओमेगा वन प्राइमरी के अकेले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टू सेकेंडरी के अकेले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो द फिगर एसोसिएटेड विथ ओमेगा वन इज दिस। The figure associated with omega 2 is this. Then we have omega n1 and omega n2। ये क्या चीज है, किसी को याद है क्या, कल मैंने बताया था। सर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी को ज्वाइन कर दोगे तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बन गया। और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की अपनी अलग दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती है, जो कि ओमेगा वन और ओमेगा टू से जिनका कोई लेना देना नहीं है। So when you create a 2 degree of freedom system, this new system, being a 2 degree of freedom system, will possess two natural frequencies and they have to be separately calculated and they have nothing to do with omega 1 or omega 2। कुछ भी लेना देना नहीं है पुरानी फ्रीक्वेंसीज से। ओमेगा वन और ओमेगा टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इंडिविजुअल नेचुरल फ्रीक्वेंसीज थी। ओमेगा एन वन और ओमेगा एन टू कंबाइंड सिस्टम की दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं। सो नाउ वी हैव ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा एन वन एंड ओमेगा एन टू, एंड फाइनली वी हैव ओमेगा। This comes from your forcing function f naught sin omega t, and this omega is the speed which you are increasing slowly in your frequency response curves।
आगे को बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो, ओमेगा को बढ़ाते चल रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अब अपन ने ये देखा, यार मैंने एक जगह पे एम्पलीट्यूड को जीरो करने की कोशिश करी, तो मेरी स्पीड की रेंज में दो जगह पे राक्षस खड़े हो गए। ठीक है, मतलब हम निकले थे एम्पलीट्यूड जीरो करने, एक जगह तो जीरो हो गया, लेकिन दूसरी दो जगह पे फिर इन्फिनिटी हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, आप जब अपनी मशीन चालू करोगे रोज फैक्ट्री में जाके, जीरो स्पीड से मशीन चालू होगी, तो हर बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जैसे ही स्पीड इस पॉइंट पे आएगी रेजोनेंस होने वाला है, और जैसे ही स्पीड इस पॉइंट पे आएगी फिर रेजोनेंस होने वाला है। आपको अपने मशीन की स्पीड इन दोनों पीक्स के बीच में मेंटेन करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू be very very careful in running your machine, so as to run your machine with a value of omega which lies between omega n1 and omega n2, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आपके कंबाइंड सिस्टम की दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बन गई, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर जैसे ही ओमेगा आता है तो फिर रेजोनेंस तो होना ही होना है, इसीलिए ये दो पीक बन रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ ऑब्जर्व अनदर फिनोमिना। फिर आपने ये कहा कि भाई यार चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं ये M2 और K2 को फिर से डिजाइन करता हूँ। आई एम टेकिंग न्यू वैल्यूज ऑफ M2 एंड K2, और मैं एक दूसरा सेकेंडरी सिस्टम लाया। बेसिकली मैं ये M2 को चेंज करना चाहता था। जैसे ही मैंने M2 को चेंज किया, मैंने क्या किया है, म्यू को चेंज कर लिया, बिकॉज म्यू इज M2 बाय M1। M1 तो चेंज नहीं कर सकते, प्राइमरी सिस्टम का है। M2 तो चेंज कर सकते हो, चेंज कर दिया, म्यू चेंज करके ले आया, बोला कि अब जरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बनाओ। तो आपने कहा पहले म्यू कितना था, तो बोला चलो पहले जो था म्यू मेरा 0.1 था। फिर मैंने एक नया सिस्टम डिजाइन किया एब्जॉर्बर का, M2 K2 चेंज किया, M2 को बढ़ा दिया। ठीक है, तो मेरा म्यू जो है अब 0.2 हो गया। फिर मैंने एक और एब्जॉर्बर डिजाइन करके रखा जिसमें M2 फिर और बढ़ा दिया, तो अब मेरा म्यू जो है 0.3 हो गया। और इसी तरीके से मैंने तीन चार एब्जॉर्बर बना दिए, उसमें म्यू चेंज हो रहा है बस। ठीक है, और आपने ये देखा जब म्यू 0.1 था तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऐसा बना। फिर जब म्यू 0.2 था तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऐसा बना। देख रहे हो आप क्या फर्क है पहले और दूसरे फिगर में, जरा देख के बताओ। फिर मैंने जब म्यू को 0.3 लिया, then I got a frequency response curve like this. Please look at the figures and tell me what difference do you observe. सर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है सर। The gap between the two dangerous frequencies, omega n1 and omega n2, they are increasing. अब मेरे को ये बताओ, एक मशीन ऑपरेट करने वाले आदमी के लिए इन तीनों में से सबसे अच्छी सिचुएशन कौन सी है? सर थर्ड के। थर्ड। थर्ड वाली या फर्स्ट वाली? थर्ड। बिल्कुल सही आंसर, थर्ड इज द बेस्ट सिनारियो। अब ये भी बता दो क्यों। सर क्योंकि रेंज ज्यादा मिलेगी सर उसे ऑपरेट करने के लिए स्पीड को। वेरी गुड, उसको ये ऑपरेटिंग रेंज मिल गई ज्यादा, वो अपनी मशीन को अब एक वाइडर स्पीड की रेंज पे चला सकता है, जबकि फर्स्ट वाली कंडीशन में उसकी रेंज इतनी कंस्ट्रिक्टेड है कि ऑपरेटिंग स्पीड ये जो सेंटर पे आ रही है यहां पर, इस पॉइंट से थोड़ी सी स्पीड कम हुई, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हुई, रेजोनेंस। So he is having a very very thin margin of operation,
and this is a not non-desirable condition. So now we have another weapon of design in our hands. अब अपने पास डिजाइन का एक पैरामीटर और आ गया. पहले अपन डिजाइन कर रहे थे M2 को और K2 को और बोल रहे थे कि भाई इन वैल्यूज को डिजाइन करने का मतलब है मैं एब्जॉर्बर को डिजाइन कर रहा हूं. और इसको डिजाइन कैसे करते हैं? M2 और K2 की आप कोई भी दो ऐसी वैल्यूज ले सकते हैं जिसको कि अगर अंडर रूट ऑफ K2 बाई M2 पे रखा जाए तो वो ओमेगा के बराबर आए. तो ऐसी K2 और M2 की कितनी वैल्यूज हैं? देयर आर लिटरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर यू टू सेलेक्ट फॉर K2 एंड M2 so that under root of K2 by M2 comes out equal to your omega. यानी कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 बनाने के लिए K2 और M2 की कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है. देख लो, जैसे कि सपोज मेरा ओमेगा जो है वो 1 रेडियन पर सेकेंड है. ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं. तो 1 रेडियन पर सेकेंड के लिए मेरे को डिजाइन करने को कहा, बोला कि एक एब्जॉर्बर डिजाइन करके लाओ. मैंने बोला लो साहब अभी कर देता हूँ. K2 ले लो 1 न्यूटन पर मीटर और M2 ले लो 1 kg. हो गया ना डिजाइन? क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ K2 बाई M2 क्या आया? 1/1 इक्वल टू 1 आ गया ओमेगा के बराबर. एक दूसरे बंदे ने कहा कि मैं भी डिजाइन करके लाया हूँ साहब, मेरा K2 कितना है? 2 न्यूटन पर मीटर है और M2 कितना है? 2 kg है. इससे भी ओमेगा 1 आ जाएगा. ओमेगा 2 आपका 1 आ जाएगा जो कि ओमेगा के बराबर है. तो इस तरह से मैं कितनी K2 M2 की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, आप बताओ? सर 3 इनफाइनाइट. 3 4 4 5 5 इवन डेसिमल प्लेसेस. K2 को 7.932 न्यूटन पर मीटर ले लिया. M2 को भी उतना ले लो, 7.932 किलोग्राम. So there are literally infinite number of combinations for which the same result comes. The absorber can be designed for infinite numbers of K2 and infinite numbers of M2 for the same machine. अब इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा? इन इनफाइनाइट में से सबसे बेस्ट कौन सी चॉइस रहेगी? वो बेस्ट रहेगी जिसके लिए म्यू मैक्सिमम हो, ताकि आपको ऑपरेटिंग कंडीशन में ज्यादा वर्किंग रेंज मिले. So now this becomes the criteria of design for a good vibration absorber. Design your M2 and K2 values in such a way so that mu is as large as possible. भाई आपके पास में बाकी सारी कंस्ट्रेंट्स को लेते हुए जो कुछ भी आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको लेते हुए M2 और K2 का सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए, जैसा कि अब अपन ने देख लिया इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से अपनी कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए ऐसा सिलेक्शन करो कि जो म्यू की वैल्यू आए वो ज्यादा से ज्यादा आए. दिस इज द bottom line of design of vibration absorbers. So let us go back to our notes and see. ये चीजें आपको समझ में आ गई और इस फिगर का सिग्निफिकेंस भी अब आपको समझ में आ गया है. ठीक है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बीच में ला करके हमने क्यों सीखा. पहले तो ये एक्सप्रेशन बनाया. इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गेम खेलना पड़ा अपने को. इस गेम को खेल के फिर अपन ने ट्यून्ड एब्जॉर्बर की बात की. ट्यून्ड एब्जॉर्बर में ओमेगा 1 को ओमेगा 2 रखा, तब जाके ये एक्सप्रेशन मिला. इस एक्सप्रेशन से अपन ने फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व्स बनाए. देखो कितनी मेहनत करी, लेकिन इसको करने के बाद अपन को जानकारी मिली ना कि भाई पहले जब सिंगल सिस्टम था तब तो एक रेजोनेंस आता था. अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बन रहा है तो इसके 2 रेजोनेंस होंगे, 2 पॉइंट्स पर रेजोनेंस आएंगे. अब आप क्या कर सकते हो? इन 2 पीक्स को एलिमिनेट तो कोई नहीं कर सकता, ये आपके हाथ में भी नहीं है. आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो कि इन दोनों पीक्स को जितना हो सके एक दूसरे से दूर रखो ताकि आपको ज्यादा ऑपरेटिंग रेंज मिले. The only thing that you can do, and that can be done by maximizing the value of mu. अच्छा, अब ये कैसे पता लगा
ये तो मैंने आपको बोल दिया कि म्यू बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। नाउ द प्रूफ ऑफ दिस इज ऑल्सो विद अस एंड देयर इज अनदर फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न। अब ये कहां से आया ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, इसके लिए भी आपको पूरा डेरिवेशन एक बार करके देख सकते हो, बट इन योर आंसर शीट्स यू डोंट हैव टू पुट अप द होल डेरिवेशन, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इस एक्सप्रेशन में देखो ये पीक आता कब है। आपकी x1 जो है, देखो xst तो कांस्टेंट हो गई एफ नॉट बाई केवल, ये तो चेंज होती नहीं है। एक ही चीज चेंज हो रही है कि आपका प्राइमरी सिस्टम का एम्पलीट्यूड कम है कि ज्यादा है, तो x1 इज चेंजिंग, ठीक है। अब ये बताओ कि x1 इंफिनिटी दो पॉइंट्स पे होता है, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, यानी कि एक यहां और एक यहां। ये जो दो वैल्यूज है, ये ओमेगा n1 और ओमेगा n2, ये आएगी कहां से? दिस कम्स कि आपका x1 इंफिनिटी तब होता है जब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाए, यानी कि यू हैव टू पुट दिस एंटायर एक्सप्रेशन ऑफ योर डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो in order to arrive at the two roots of equation। अब ये देखो ओमेगा के अंदर में ये ओमेगा स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसको अगर आप दो रूट्स निकालें इसके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के ओमेगा के दो रूट्स निकालें, तो ये दो रूट्स ही आपको ओमेगा n1 और ओमेगा n2 की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। This is how you find the values of omega n1 and omega n2 by putting the denominator of this expression, that is this part, equal to zero। क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो x1 by xst इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसके रूट्स निकाले बेसिकली यहां पे मैंने, देखो ठीक है, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 9 टू जीरो, यानी ये डिनोमिनेटर था, इसको इक्वल टू जीरो रखा, तो आपके जो दो रूट्स आते हैं वो ये आते हैं, ओमेगा बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4। ये बॉक्स इक्वेशन है, और ये मान के चलो कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर से एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आता है, और उस न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन यूज होती है बस। तो दिस इज एन इक्वेशन विच यू हैव टू कंपल्सरीली रिमेंबर। ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये तो डेरिवेशन में काम आती है, ठीक है। तो अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए आइडियली, और अगर आपको ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है याद करना तो छोड़ दो। देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ स्किपिंग सम पार्ट ऑफ योर सिलेबस विच यू डू नॉट लाइक, और यू और विच यू फाइंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है। आइडियली तो भाई आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ याद करना है, ठीक है, बट as a general case it is not always possible, so you decide what you have to do। but anyway, इस इक्वेशन के साथ में ऑप्शन मत छोड़िए, ये तो डबल स्टार्ट इक्वेशन है, यानी कि इस पूरे वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या चीज है? दिस इज द इक्वेशन, by putting the value of mu in this equation you get the value of omega n1 and omega n2। ये देखो ये स्क्वायर है, तो इसमें एक बार तो आप प्लस साइन यूज करोगे और एक बार माइनस साइन यूज करोगे, तो आपको ओमेगा की दो वैल्यूज मिलेगी। जब माइनस साइन यूज करोगे तो जो ओमेगा निकल के आएगी वो ओमेगा n1 होगा, और जब यहां पर प्लस साइन यूज करोगे तो आपकी जो ओमेगा निकल के आएगी वो ओमेगा n2 होगा, यानी कि फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इससे निकल। और एक और चीज हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहां होगी, यानी कि इस एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहां बनेगा, और इस एक्स एक्सिस पे ये दूसरी लाइन कहां बनेगी, इसका निर्धारण आप इस इक्वेशन में देखें तो सिर्फ और सिर्फ म्यू करना है। Only mass ratio is the one that is deciding where the peaks of omega n1 and omega n2 are going to occur। और अब इससे आपको ये समझ में आ गया कि ये मैंने पहले क्यों कहा कि सिर्फ म्यू को चेंज करके देखें तो ये जो पीक्स हैं ये आगे पीछे शिफ्ट होती हैं।
because the occurrence of omega n1 and omega n2 is solely a function of mu. ठीक है, अब हमने बोला भाई एक इक्वेशन और हाथ में दिख रही है, ठीक है, तो फिर इसका भी एक ग्राफ बना के देखें. So if you plot the graph for this equation by taking omega by omega 2 on the y-axis and mu on the x-axis, तो आपको पूरी चीजें साफ नजर आने लग जाती हैं. आप ये देखिए, ओमेगा की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट, सॉरी म्यू की एक वैल्यू सेलेक्ट कीजिए और उसको ऊपर को एक्सटेंड करके देखिए कि ये इस कर्व को कहां कहां कट करती है. एक यहाँ पे कट करती है और एक यहाँ पे कट करती है. तो आपने ये कहा कि अभी मेरा ओमेगा n1 तो यहाँ बनेगा और ओमेगा n2 यहाँ बनेगा. अब देखो इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना सा ही गैप है. आप म्यू की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाओ, इधर तक ले आओ, वापस से एक्सटेंड करो, एंड नाउ सी व्हाट आर द वैल्यूज. यहाँ पर आपको ओमेगा n2 मिलेगा, यहाँ पर आपको ओमेगा n1 मिलेगा. और अब देखो कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है. नाउ द गैप हैज इंक्रीज्ड. अब आपको इतना गैप मिल रहा है. So this graph basically shows that as you keep on increasing the value of mu, the gap or the distance or the working range of your machine gets better and better. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपके for the relationship between mu or the mass ratio and the two resonant frequencies that nobody can avoid. इन दो पीक्स को कोई अवॉइड नहीं कर सकता. आप सिर्फ इतना कर सकते हो अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज लगा के, अपनी मैथमेटिकल नॉलेज लगा के, कि भाई इन दोनों राक्षसों को थोड़ा और दूर भेजो एक दूसरे से, क्योंकि ये पास आ गए तो हमारा जीना हराम कर देंगे. सो सेंड देम एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल. दिस इज द ऑब्जेक्टिव, and this, as we have seen from our design equation, this equation can be obtained by selecting the value of mu as large as possible. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? फिर हुआ कि नहीं हुआ आज का पूरा डिस्कशन आपके लिए? Yes, sir. Now what I want you to do is note down these numerical values. न्यूमेरिकल्स के ये जो नंबर्स हैं इसको नोट करें. वाइब्रेशन ट्यूटोरियल शीट नंबर 3, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूटोरियल शीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सीक्वेंस में आपके वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 को अभी फिलहाल छोड़ दो, ये सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर का टॉपिक है, ये अभी अपना अगला टॉपिक है. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास. अभी नेक्स्ट क्लास में अपन वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स की इस डिजाइन इक्वेशन को लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेकिन आप इसको नोट करके जरूर रख लो. 4, 5, 6, 7 आर इक्वेशंस ऑफ, और सॉरी क्वेश्चंस ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का है, क्वेश्चन नंबर 11 वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का है, ट्यूटोरियल शीट नंबर 3 में. इसको नोट कर लें और आपके पास में जो शीट है उसके ऊपर भी चाहे तो हाईलाइट करके रख लीजिए आप. जस्ट नोट इट डाउन. आई विल रिपीट द क्वेश्चन नंबर्स 4, 5, 6, 7 इन सीक्वेंस, देन 9 एंड देन 11. ठीक है, इनको नोट करके रख लो. There is another thing that I want you to note down before we close this session. हमने ये कहा कि भाई हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है x1 अपॉन xst का. ठीक है, थोड़ा पीछे जाकर के बात कर रहा हूं मैं. ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि आपकी किसी एक वर्किंग स्पीड ओमेगा पे, ये सब आप पहले से ही सेट करके बैठे हुए हैं. ओमेगा 2 आपका फिक्स हो गया है. नाउ दिस इज अ कांस्टेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड अ सेकेंडरी सिस्टम बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ k2 एंड m2. उन्हीं से ये ओमेगा 2 बनी है. ठीक है, तो ये सेलेक्ट करके लगा दिया. म्यू
जैसे ही आपने K2 और M2 का सिलेक्शन कर लिया तो म्यू भी सेट हो गई, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपकी ओमेगा की स्पीड पे कितना एम्पलीट्यूड बन रहा है ये बताता है ये वाली इक्वेशन, और इस इक्वेशन का ग्राफ ये है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में, इसका बाकी का बॉडी तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लास्ट वाली जो क्वेश्चन है, दिस इज आस्किंग अंडर दीज कंडीशंस व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ द एब्जॉर्बर विल बी ऑब्टेन्ड। मतलब ये एक ऐसा अजीब सा क्वेश्चन है जिसमें ये आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ठीक है, एब्जॉर्बर आप लगा दोगे तो प्राइमरी सिस्टम का एम्पलीट्यूड तो जीरो हो जाएगा, ये आपने भी सीख लिया, ये हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन जब सेकेंडरी सिस्टम प्राइमरी का वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या किसी ने ये सोचा कि सेकेंडरी सिस्टम पे क्या गुजर रही होगी। भाई उसने आप मतलब जो बोलते हैं ना, जैसे कि जहर पी लिया किसी, जैसे कभी मूवीज में, पुरानी मूवीज में भी दिखाते हैं, जैसे किसी आदमी के पैर पे कोई सांप काट लेता है तो क्या करते हैं कि, अब पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मच इट इज इफेक्टिव, कोई आदमी जाकर के उसका जहर चूस करके बाहर निकालता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो आदमी जो चूस रहा है वो खुद बेहोश हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमेडी जैसा एग्जाम्पल लिया है मैंने, बट दिस इज स्लाइटली सुटेबल हियर। तो आपका सेकेंडरी सिस्टम आपने इसीलिए लगाया ताकि वो प्राइमरी के जहर को पी सके। जहर क्या है? लार्ज एम्पलीट्यूड। तो जब सेकेंडरी सिस्टम उसका एम्पलीट्यूड को पी रहा है, खत्म कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस पर क्या गुजर रही होगी। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। बोला कि आपने एब्जॉर्बर डिजाइन कर लिया, ये देखो, ही इज आस्किंग यू टू हाउ मच शुड बी द, क्या कहते हैं, ये देखो, व्हाट डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर शुड बी कपल्ड, यानी कि कैसा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर बनाऊं जिससे कि फलाना 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 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और एंड में ये पूछ रहा है, अब ये भी बताओ कि आपका जो एब्जॉर्बर आपने लगाया उसके क्या हालचाल है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एब्जॉर्बर। तो उसके लिए एक एडिशनल आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूं जो कि मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, और वो बिल्कुल इससे सिमिलर है। ये देखो, द डिनोमिनेटर विल बी द सेम। और अब मैं आपको कौन सा फॉर्मूला देने जा रहा हूं भाई, x1 अपॉन एक्स एस टी से तो आपने प्राइमरी सिस्टम का हालचाल पता कर लिया कि भाई तुम्हारा क्या एम्पलीट्यूड चल रहा है। तो अगर मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन बना पाऊं x2 अपॉन एक्स एस टी, ये भी एक डायमेंशनलेस इक्वेशन बनेगी, क्योंकि x2 और एक्स एस टी के दोनों के यूनिट सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इट विल बी अ डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कितना बनेगा, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, द डिनोमिनेटर विल एग्जैक्टली बी द सेम, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा, और ऊपर की ये जो क्वांटिटी है ये हट करके सीधे सीधे वन आ जाएगी। दिस इज द चेंज, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज ऑल्सो यूजफुल। कि भाई अब मैं बताता हूं इसकी यूटिलिटी क्या है, कि इसमें से x2 कैसे निकलेगा, ठीक है। एक बार इसको अपन लिख के देखते हैं, x2 अपॉन एक्स एस टी। अच्छा, x2 अपॉन एक्स एस टी का ये एक्सप्रेशन आता कैसे है ये भी बता दूं। देखो, x1 अपॉन एक्स एस टी कैसे निकाला, आपने ओरिजिनल दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई थी और उसमें ये चीजें सब्स्टिट्यूट करी थी, और उसके बाद आपने क्या किया था, x2 का एक्सप्रेशन बना करके इसको ले जा करके यहां पर सब्स्टिट्यूट किया था। अब आपको क्या करने का है, x1 का एक्सप्रेशन बनाइए इक्वेशन नंबर 6 में से, और x1 के एक्सप्रेशन को ले जाकर के यहां रखिए, तो आपका x2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा। So instead of getting an expression for x1 by xst, you will get an expression for x2 by xst। इस तरीके से बनता है ये। लेकिन आपको ये सारी चीजें पूरी मैथमेटिक्स आप करके देख लो, यू विल गेट, यू शुड गेट,
बट यू विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आफ्टर दैट। ये मैं पहले से ही बता दूं, ये इतना सिंपल नहीं है ये कन्वर्जन। बट इफ यू वांट टू सिंपली रिमेंबर इट, ये सब कर कुरा करके x2 बाई एक्स एस टी की बजाय, सॉरी x1 बाई एक्स एस टी की बजाय x2 बाई एक्स एस टी आ जाए, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। तो आई एम rewriting it here. If I make an expression of x2 by xst, I should get this value 1 upon, एक बार इसका डिनोमिनेटर देख लो, ओमेगा रेज टू पावर 4 अपॉन ओमेगा 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 प्लस म्यू टाइम्स ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं कंडीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रखूं, दैट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, and this expression will give you the हालचाल of your absorber। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 रखूं, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा। यहां पर ओमेगा 2 आ जाएगा, यहां पर ओमेगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जरा बताओ ये क्या आ रहा है, एक सेकेंड, नॉट इन दिस वन, लेट मी जस्ट चेक, सॉरी इस वाले एक्सप्रेशन में रख के देखते हैं। इस वाले से अपन को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, पुट इट हियर, लेट मी जस्ट राइट द इक्वेशन डाउन, x2 by xst should be 1 upon, ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन की जगह पे आपको 1 रखना है और बाकी नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। तो दिस विल बी ओमेगा रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा। अब देखो, now putting the condition of absorption which says that omega should be kept equal to omega 2, तो अब जहां जहां पर भी ओमेगा आ रहा है वहां पर ओमेगा 2 रखो, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने इस एक्सप्रेशन में, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इवेंचुअली इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा, ऑल थिंग्स व्हेन दे कैंसिल आउट, ये देखो ये 1 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करके जब आप फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन म्यू। एक सेकेंड और लूंगा आपका थोड़ा, आई नो दैट योर टाइम इज ओवर। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट, ठीक है। अब इसमें म्यू को आप रखेंगे m2 बाई m1, ओमेगा 2 को रखेंगे k2 बाई m2 और ओमेगा 1 को रखेंगे k1 बाई m1। And when you simplify this by putting these substitutions also, then finally you get the result x2, अब xst को क्या लिखेंगे, f नॉट अपॉन k1,
इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या आ रहा है जरा देखिए, and when you simplify this equation you will get x2 equal to minus f naught upon k. So this is also something that you might be interested in remembering. अब ये पूरा का पूरा आप एक बार हाथ से करके देख सकते हैं या फिर इस फाइनल रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। x2 जो है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, अब बताओ कि एब्जॉर्बर का एम्पलीट्यूड क्या चल रहा है, तो आप सिंपल बोल देना कि इट इज एफ नॉट अपॉन के टू। दिस माइनस साइन सिंपली इंडिकेट्स कि जिस दिशा में फोर्सिंग फंक्शन चल रहा है उसके ऑपोजिट सेकंड मास का एम्पलीट्यूड चल रहा है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस माइनस साइन हियर। ठीक है, यहां पर भी माइनस है, सॉरी, यहाँ पे ऊपर माइनस था ना। So please make a note of this particular result. This is also useful for your numerical examples या numerical problem. ठीक है, तो एब्जॉर्बर का K2 आपने डिजाइन कर ही लिया है और फोर्सिंग फंक्शन का F नॉट आपको पता है, तो F नॉट अपॉन K2 से आपका X2 मिल जाएगा। दैट इज कि आपके एब्जॉर्बर का क्या एम्पलीट्यूड चल रहा है। ठीक है, एक बार आप इस पूरे स्टेप को वापस से देख लेना, थोड़ा सा मैंने स्पीड में बता दिया है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो, बट go through the video lecture once again and try to perform these steps in a systematic fashion and see whether you achieve this result or not. And if you are not interested in that, you simply remember this result. That would also be sufficient. Now let me take your attendance. Please stay with me.